Yes, in the last lecture, we have discussed about what is accounting, how it is differ from bookkeeping, and what is branches of accounting, right? And we have saw our syllabus. तो जिसमें से we are going to start with the very first concept, that is accounting standards issued by ICAI and IFRS. So जितना मुझे याद है आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था. Yes, class? Yes, class. क्या होमवर्क दिया था? To find what difference in AS and IFRS. Yes, what is the difference between AS, IFRS and Indian AS? तो कितने लोगों ने इस पे वर्कआउट किया है? ब्रीफली चाहिए मुझे, इन डिटेल कुछ भी नहीं चाहिए. इन डिटेल हम देखेंगे हमारे धीरे धीरे हमारा पोर्शन जैसे आगे आगे बढ़ता होगा. तो ब्रीफली आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या समझा? Ma'am, I can tell you. Yes, sure. First, ma'am, I tell the a little history of AS and IFRS. Okay. After the Indian Companies Act 1956, India is their own AS using is Yes. also known as Indian GAAP. Its full form is General Applicable Accounting. Generally accepted accounting principle. Yeah. Yeah, good. After the change in Company Act 2013, it Very is nice. also called as Ind AS and IFRS. IFRS is also known as IAS previously. It is a set of international accounting standards Very good. which is adopted by 120 countries. Now I am telling you what is difference between them. India is actually same as IFRS. The main difference is that India is developing country. Yeah. So we have to develop capital flow in our country. But our accounting standards are not same as IFRS. Yeah. So we have to develop uh, Ind AS, which is help to increase capital flow in country. Very good. But now there is a little bit difference between them is in format of balance sheet, for foreign exchange rate, and minor changes in component of financial statement. Superb. Very good. Yes, exactly what is the difference between these three terms? Fabulous. Good. Ishan. Yes. Any other student? This is what I was expected. Very good, Ishan. Yes. Any other student would like to tell anything? Yes, class? Any other student would like to try? कितने लोग हैं इसमें से जिसने कोशिश ही नहीं की है? कितने लोग हैं जिसने कोशिश की पर नहीं समझ में आया, कुछ कुछ समझा? सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना? यस सर. Ma'am, I just write down the meanings of the information that in Google's. Okay. So can I read it? Yeah. INDAS in Indian Accounting Standard. It's also written as INDAS is an accounting standard adopted by the companies in India and issued under the supervision and Accounting Standard Board ASB, which was constructed as a body in the year and 21st March April 1977. Which is constructed in 1977 you're talking about? 21st INDAS Accounting Standard Board, which was constructed as a body in the year 21st April. Just wait for a second. I'm not able to hear. Just wait for a second. Yes, tell me. You were talking about in 1977, which was constructed in 1977.
accounting standard Accounting standard. board, Okay, accounting which standard you're talking about. Okay. yes, Yeah. Hmm. which was a constructed body of INDS, I think so. IFRS, Indian Financial Reporting Standard, commonly called IFRS, are accounting standard issued by the IFRS Foundation and the International Accounting Standard Board (IASB). They constitute a standardized way of describing the company's financial performance and position so that the company financial statements are understandable and comparable across international boundaries. They are particularly relevant for companies with shares or securities listed on a public stock exchange. IFRS have replaced many different national accounting standards around the world but have not replaced the separate accounting standards in the United States where US Okay, definition GAAP fine. is applied. Yes. And AS accounting standard can be any form of statement which consists of rules and सर आपकी guidelines. आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा. मैम आई अभी? हाँ, थोड़ा लाउडर बोलो ना. Okay. Accounting standard can be any form of statement which consists of rules and guidelines issued by the accounting institutions for the preparation of uniform and consistent financial statements. This also includes disclosures required by the different user of accounting information. That's it. Okay. या आपने एग्जैक्टली वही बोला पर थोड़ा डेफिनेशन वाइज बोला जिससे आपने कलेक्ट किया होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट जैसे ईशान ने बोला तो 3 कंसेप्ट इवैल्यूएट हुआ था. सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप शॉर्ट फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो जो हम ज्यादातर सीख रहे हैं अभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सीख रहे हैं. सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है. तो हमने ये तो पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक कॉमन लैंग्वेज होता है जो सबको समझ में आए. राइट, ये एकदम बेसिक सा है कि जिसकी वजह से जैसे कोमल भी पढ़ सके, मैं भी पढ़ सकूं, श्रुति भी समझ सके, अभिषेक भी समझ सके. इसके लिए अकाउंटिंग को इवैल्यूएट किया गया. उसके अंदर में हमने AS पढ़ा, तो AS के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. इंडियन AS है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. IFRS है, उसके अंदर भी चीजें लिखी हुई है. तो फिर इन बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो इनके बीच में डिफरेंसेस ये है कि जो AS था वो 1956 के एक्ट के साथ बना था. जो हमारा गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आपका ICAI है, उन लोगों ने बना मिलाकर हमारा AS को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था कि ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे जो हर लोगों को फॉलो करने होंगे. तो ही हम पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं. कोई भी कंपनी का हम बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग पढ़ सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ ये कंपनी का स्टेटस एज ऑन डेट ऐसा है. राइट. तो उसके बाद जैसे सिस्टम आगे बढ़ता गया, तो जैसे स्पेशली 1991 में जो हमारा LPG हुआ, हम ग्लोबलाइज्ड हुए, तो हमें compete करना है वर्ल्ड के साथ. राइट, कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ. तो पॉसिबिलिटीज थी कि उनका सिस्टम और हमारा सिस्टम मैच नहीं हो. हमारा जो AS था वो बहुत साल पुराना था. आप देख सकते हो कितने साल हो चुके हैं वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स को है. उसमें मेजर माइनर थोड़े बहुत जो भी चेंजेस होते रहते हैं, जिससे अभी रिसेंटली भी कुछ चेंजेस हुआ है उसके अंदर. जैसे अकाउंटिंग 108 को निकाला गया, 31 को निकाला गया, 28 29 को मर्ज किया गया. तो ये छोटी मोटी चेंजेस हुए, पर मेजर कोई भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस आए नहीं थे. पर जब आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ गया कंट्री के अंदर, तो हमने IFRS को फॉलो करना शुरू किया.
क्यों आईएफआरएस को फॉलो करना शुरू किया? क्योंकि वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, राइट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होता है। तो वो लोग तो हमारा फॉलो नहीं करेंगे, वी आर डेवलप्ड कंट्रीज, तो हमने उनके सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब ज्यादातर कंपनीज जो ग्लोबल लेवल पे डील करती है वो लोग आईएफआरएस को फॉलो करते हैं। तो अब ऐसे हो गया कि जो सोल ट्रेडर्स है, जो छोटी कंपनीज है, जो इंडियन लेवल पे डील करती है, वो लोगों ने एएस को फॉलो करना शुरू किया, और जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा था वो लोगों ने आईएफआरएस को फॉलो शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ काम करना है, हमें कम्पीट करना है उनके साथ। तो ये चीजों को ध्यान में रखकर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आईसीएआई, ये जो हमारी कमिटी है, इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्यों आईएफआरएस को फॉलो करें, राइट? हम हमारा स्टैंडर्ड बनाएं जो मैच करे आईएफआरएस के साथ। आईएफआरएस के साथ आईएएस बोलते हैं, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस दोनों एक ही है, राइट? उसमें भी अलग अलग है कि यूएस आईएफआरएस को फॉलो नहीं करता है, वो यूएस गैप फॉलो करता है। बाकी सारी जो डेवलप्ड कंट्री है, बड़ी बड़ी कनाडा, स्विट्जरलैंड, वो सारा आपका आईएफआरएस को फॉलो करता है। पर हम भी आईएफआरएस को फॉलो करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि हमें भी वो उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, राइट? तो ये चीजों को ध्यान में रखकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2015 को क्या किया? इंडियन एएस एक्ट बनाया, INDAS करके, इंडियन एएस। एएस को हमने बदलने की कोशिश की। अब बदल के हम कर क्या रहे हैं? आईएफआरएस के साथ मैच कर रहे हैं। तो हमारा सोच है कि हम क्यों किसी और का अडॉप्ट करें, हम वैसे ही, हम सेम उसी तरीके से बनाए। तो हम हमारा अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, ना कि किसी और का फॉलो करेंगे। तो उन्होंने उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया, ऑब्वियस बात है, हम डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, सॉरी। तो हर चीज एक साथ इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, मेस हो जाता है ना, बहुत बड़ा ये है। तो उन्होंने उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, मतलब फेस वाइज में। तो एक फेज उन्होंने 2016 में लाया कि जो कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होगा, इक्वल होगा, वो लोग अडॉप्ट करेंगे। मतलब लास्ट 3 साल का उनका प्रॉफिट भी देखेंगे उसके अंदर, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। फिर फेज 2 लाया 2017 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने देखा 250 करोड़ और 500 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर होगा लास्ट 3 इयर्स का। तो फेज 3 लाया, जिसके अंदर उन्होंने 2018 में लेकर आए। फेज 4 उन्होंने 2019 में लेकर आए कि जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन लोगों को अडॉप्ट। अभी तक तो बैंकिंग कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज थी स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी बात कर रहे थे। अब उन्होंने फेज 4 लाया है 2019 में। अब 20 में हमारा सिनारियो थोड़ा ठीक नहीं है, तो कोई चेंजेस मेजर अभी आया नहीं है। मतलब उन्होंने सबको कंपलसरी नहीं किया। मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपको इंडियन एएस की बात कर रही हूँ। तो इंडियन एएस है वो उन्होंने 4 फेसेस के अंदर लेकर आए। 4 फेसेस कब से? 2015 से, एक्चुअली एक्ट 15 का है, 16 से उन्होंने इम्प्लीमेंट करने शुरू किए। जो इंडियन एएस का एक्ट है वो 2015 में उन्होंने इवेल्युएट किया। जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कब से करने की कोशिश की? 2016, 17, 18, 19, ऐसे 4 फेसेस में अभी तक आपके इंडियन एएस इम्प्लीमेंट हुए हैं। तीनों की डिफरेंस समझ में आए आपको? यस क्लास? कुछ इंटरेस्टिंग, Yes, ma'am. कुछ इंटरेस्टिंग हमने देखा, कुछ अलग देखा, कुछ प्रैक्टिकल देखा कि Yes, एक्चुअल ma'am. प्रैक्टिकल क्या है। यस, कोई और एक्सप्लेन करेगा? जो अभी ईशान, सैफ, मैंने जो डिस्कस किया उसको कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता है कोई, जो आपको क्या समझा? यस क्लास? आप जितना आंसर्स दोगे उतना आप में भी कॉन्फिडेंट आ जाता है, और फिर समझ में भी आता है मुझे कि आपको कितना समझ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ समझ में आता है कि नहीं। Yes. यस, अनुराग बोलोगे आप बच्चा? यस, कोई और? ये अनीता यादव और
उजाला यादव, ये दोनों एक ही साथ में बैठे हो आप लोग बच्चा? यस मैम। ओके ठीक है, आप लोग आंसर कोशिश करोगे? मैम हम लोग अभी ज्वाइन हुए तो समझ में नहीं आया। अभी आवाज मुझे स्लो आ रही है, मेरा इसमें प्रॉब्लम है या सबको ही स्लो आ रही है आवाज? नहीं मैम, हम लोग अभी ज्वाइन हुए, जस्ट अभी ज्वाइन हुए। आप अभी ज्वाइन हुए, हाँ। ऐसा बोल रहे हो? अच्छा ठीक हाँ। है, यस। बाकी मैम मैं ट्राई करूँ? वेरी गुड, गुड। Indian AS is a Indian accounting standard. Is the accounting standard adopted by companies in India and issued under the supervision of Accounting Standard Board. This is which was constituted as a body in the year on 21st April. And IFRS is the International Financial Reporting Standard, which is universally applicable related to the finance to prepare report in a set format and set rules and regulations. IFRS are the accounting standard adopted by IASB. 10 principle in a current are 16 IFRS. And ma'am, IFRS component जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट जब प्रोविजन प्रोवाइड करता है तो 2 से 3 ऑप्शन उसमें रहते हैं, और इंडियन एएस में बस 1 या फिर 2 ही प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और इंडियन एएस बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, और आईएफआरएस प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट सब प्रिपेयर करता है। और इंडियन एएस में इंडियन एएस में गाइडलाइंस रहता है प्रेजेंटेशन में, और आईएफआरएस में 2 रहता है, एक single statement format and dual statement format. Single statement format in the latter income statement is separated in different components that include profit and loss of operating and non-operating income, and single statement only display profit and loss in a dual statement. That's it, ma'am. गुड। कोई और कुछ बोलेगा? यस यस, निधि ने लिखा है यस, परफेक्टली गुड। यस बराबर है। कभी भी पूछूं तो पता होना चाहिए, ऐसे कंसेप्ट पढ़ना है हमें, अभी पढ़ना है, अभी के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एएस है। अभी हम एएस में ही हैं, अभी तक हम आईएफआरएस को कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना, इंडियन एएस को। इंडियन एएस को तो अभी टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, अब तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है फेस वाइज, तो उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। तो हम एएस को देखते हैं। तो एएस के अंदर सबसे पहला एएस है, वो बोलता है कि हर एक कंपनी को अपने हर एक पॉलिसीज जो भी चेंजेस करता है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरे लोगों का इंटरेस्ट है। उनके इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जैसे शेयर होल्डर्स है तो उनका इंटरेस्ट डिविडेंड पे है, जैसे आपके बैंक्स हैं तो उनका इंटरेस्ट, उन्होंने लोन दिया होगा तो उनके पैसे पे है, उनके इंटरेस्ट जो उनको रिसीव करते कंपनी से उनसे है, तो उनको सबको लेना देना है कंपनी से। तो कंपनी में जो भी चेंजेस होंगे पॉलिसीज के अंदर उसको कंपल्सरीली डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो ये अपने मन से नहीं कर रहे हम लोग, ये कहाँ पे लिखा गया है? AS 1 के अंदर, राइट? तो ऐसे बहुत सारे AS है, 30, 28, 29, 30 के आसपास, तो जिसमें से हम 3 से 4 ये हमारे सेमेस्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो जिसमें से 4 है जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो जिसमें से जो सेकेंड वाला पार्ट है हम उसको शुरू करने वाले हैं, लर्निंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्रीज होते हैं, जो इन्वेंट्री आप
इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में? स्टॉक। वेरी गुड। तो जो स्टॉक होता है उसको कंपनी कैसे वैल्यू करती है, क्या मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के, हम वो देखने वाले हैं। तो स्टॉक मतलब क्या? सबसे पहली बात तो जैसे हमें इन्वेंट्री का मतलब ही नहीं पता था कि इन्वेंट्री दूसरा नाम होता है स्टॉक का। गुड्स आर द मर्केंटाइल्स केप्ट ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ अ शॉप और अ वेयरहाउस अवेलेबल फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक का मतलब क्या है? गुड्स है, प्रोडक्ट है, बराबर ना? जो चीज मेरा बिजनेस करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ। मेरा बिजनेस मोबाइल बेचने का है, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है? स्टॉक है, राइट? जो आप प्रेमाइसेस में रख रहे हो, वेयर हाउस में रख रहे हो, जो अवेलेबल होने वाला है फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। आप खुद सेल कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ऐसे कोई भी चीज हो उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. स्टॉक मतलब क्या? जो प्रोडक्ट से आप डील करते हो, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, उसको बोलते हैं स्टॉक। सिंपल वर्ड्स में हम लोग ने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट दो चीजें होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है और एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में यही सिंपल सा डिफरेंस है। जब हमने ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या है? मैंने गुड्स खरीदा शाहीन से और मैंने गुड्स बेचा अनीता को। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, मैंने गुड्स खरीदा शाहीन से और मैंने गुड्स बेच दिया अनीता को। ये ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडर हूं मैं, खरीदना और बेचना ये मेरा काम है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या है फिर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होता है, मैं खुद गुड्स को बना रही हूँ। मोबाइल, जैसे कि एग्जांपल मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल बनाती हूँ, तो मोबाइल के पार्ट्स मैंने खरीदे, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। उसको मैंने प्रोसेस करवाया, मतलब उसको असेंबल करवाया, वो WIP हो गया, वर्क इन प्रोसेस। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स के अंदर। यहाँ पे मैंने चीजें बाहर वालों से खरीदी नहीं, मैंने खुद बनाया। तो वो अब मैं क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब मैं गुड्स बनाती हूँ खुद से और बेचती हूँ मेरे कस्टमर्स को। नंदिनी, अनीता, शाहीन, कोमल, ये सारे लोग मुझसे मेरे गुड्स खरीदते हैं। वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो उनके लिए गुड्स क्या है, उनके लिए स्टॉक क्या होता है, राइट? ट्रेडिंग कंसर्न के लिए स्टॉक क्या है? परचेजेस गुड्स फॉर रीसेल। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने शाहीन से खरीदा अनीता को बेचने के लिए, तो ये हो गया ट्रेडिंग कंसर्न। Trading concern purchases goods for resale. It is possible that on last day of accounting year, some of the goods remain unsold are. एक सेकंड। Yes. So possible that last day of the accounting year, some of the goods remain unsold, that is are in stock. इसका मतलब क्या है कि मैंने शाहीन से गुड्स खरीदा और मैं बेचने वाली हूँ मेरे दूसरे कस्टमर्स को, पर अब लास्ट डेट में ये पॉसिबल है अकाउंटिंग के कि मैंने उनसे पूरे साल भर में गुड्स खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा। अब साल का एंड हो गया है। जैसे हमें पता है कंपनीज एक्ट 2013, जो नया कंपनीज एक्ट है मेरा, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है वो कंपल्सरीली 31 मार्च को ही खत्म होता है। अभी तक हमने सम्स किए होंगे, बुक में आपको दिखा होगा कि दिसंबर भी जो आपका कैलेंडर ईयर है उसमें भी आपने सम्स देखे हैं, पर अभी का जो रूल है 2013, उसके हिसाब से कंपनी को कंपल्सरीली अकाउंट कब क्लोज करना है? 31 मार्च को ही क्लोज करना है। यस, आप चालू तो कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। हमने सम हमेशा देखा है
सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जरूरी नहीं है, मैंने बिजनेस बीच में भी चालू किया, हो सकता है दिसंबर, फरवरी, जनवरी, पर खत्म मुझे 31 मार्च को ही करना है। तो जो 31 मार्च हो गया, मैंने गुड्स खरीदा था शाइन से, पर गुड्स बच गया है ना, तो बच गया है इसका मतलब वो क्या है मेरे लिए, स्टॉक। स्टॉक कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, बराबर ना। स्टॉक का मतलब क्या है, इन शॉर्ट गुड्स जो बिका नहीं है, जो बेचने वाले हैं हम, जो बिकने वाला है, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न परचेज रॉ मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, जैसे अभी डिस्कस किया मैंने कि मैंने रॉ मटेरियल कोमल से खरीदा, राइट, जिसको मुझे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। द फिनिश्ड गुड्स आर देन सोल्ड. It is possible that on the last day of the accounting year, some raw materials remain unused, some raw material are still in process, even some finished goods remain unsold. Yes, possibilities है, जैसे मैंने ट्रेडिंग कंसर्न में बोला, मैंने शाइन से गुड्स खरीदा और मेरे को बेचना है, तो पूरे साल भर में खरीदा बेचा पूरा हो गया, पर एंड में मैंने शाइन से गुड्स खरीदा था 15 मार्च को, उस 10,000 यूनिट्स खरीदा था, तो 10,000 बिका नहीं, उसमें से 5,000 बचा हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। उसको हम फेंक देंगे क्या, नहीं, मैं उसको नेक्स्ट ईयर में बेचूंगी, मेरे नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर में बेचूंगी, राइट ना। हम वो चीजें फेंकते नहीं है। तो सेम वे में मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल खरीदती हूँ जिसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ। तो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मेरे पास यहाँ पे स्टॉक के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। मेरे पास क्या क्या स्टॉक रह सकता है, एक तो मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रह सकता है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा जो यूज नहीं हुआ साल के एंड तक, वो बच गया है, वो भी स्टॉक है। और कुछ है जो बीच में प्रोसेस में है, आधा असेंबलिंग हो चुका है मेरे मोबाइल का और आधा बचा हुआ, दैट इज WIP, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, जो बीच में है, रॉ मटेरियल से आगे, फिनिश गुड से पहले, बीच का प्रोसेस, तो वो भी मेरे पास हो सकता है। और सम फिनिश गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो फिनिश गुड्स बन चुका है वो बिका नहीं है, ये भी मेरे पास हो सकता है। तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको पॉसिबिलिटीज थोड़े ज्यादा है, और ट्रेडिंग के अंदर एक ही है, गुड्स मेरे पास गुड्स ही अनसोल्ड रह सकता है, पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल भी रह सकता है, WIP मतलब जो बीच में अटका हुआ प्रोडक्ट भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। द स्टॉक इंक्लूड्स द गुड्स परचेज फॉर रीसेल बट नॉट येट सोल्ड, raw material purchased but not yet consumed, raw material only partly processed, that is WIP, finished goods manufactured but not sold. वही चीज को लिखा हुआ है, बराबर ना, कि गुड्स को रॉ मटेरियल हो सकता है जो बिका नहीं है, जो या तो WIP हो सकता है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड हो चुका है, फिनिश गुड्स नहीं बना है, या तो फिर फिनिश गुड्स हो सकता है जो बिका नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। स्टॉक को कंसेप्ट को हमने कहाँ पे डालने की कोशिश किया, एक ट्रेडिंग के अंदर और एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। किसी को कुछ नहीं समझ में आया इसके अंदर? यस क्लास, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था, आपको कुछ भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं समझ में आया तो जब भी ही हाथ उठाओ या अनम्यूट करो और तुरंत ही पूछो, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम, मैं कितना भी बोल रही हूँ, डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। यस निधि, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या पूछना है आपको? यस अच्छा, यू डिडंट गेट माय पॉइंट, राइट, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सिंपल मतलब क्या है, मैं किसी से गुड्स नहीं खरीदूंगी, मैं खुद बनाऊंगी। मैं, जो मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है मोबाइल को बेचना, ठीक है, तो मोबाइल मैंने
किसी से खरीदा नहीं, मैंने खुद बनाया। निधि आपको मोबाइल बनाना होगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? यस निधि। यस बोलो। आवाज आ रही है निधि आपको मेरी? निधि आवाज आ रही है आपको? निधि आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस श्रुति, परफेक्टली। रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, जो मटेरियल लगने वाला है मोबाइल बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल हो गया। निधि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है हमारी? क्योंकि आपका माइक तो ऑन है पर आवाज नहीं आ रही है। यस नेहा, परफेक्टली सेट। चैट बॉक्स में निधि आप लिखो ना एटलीस्ट आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अदरवाइज आप लिख के ही बोलो। नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो, माइक ऊपर नीचे हो रहा है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। बाकियों को आ रही है क्या निधि की आवाज? नो मैम। नो, ठीक है। तो आपका माइक में प्रॉब्लम है निधि, आप लिखो, बेटर होगा। यस, परफेक्टली सेट श्रुति एंड स्नेहा, कि हम करते क्या है इसके अंदर, चीजों को खरीदते हैं बनाने के लिए। जो पार्ट्स लगेंगे, जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब एक्चुअल में मेरा 3 प्रोसेस हो जाता है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर। ये पूरा चैप्टर है आपको जिसका आपको फाइनल अकाउंट बनाना है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। यहाँ पे हम डिटेल में कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक किसके लिए क्या क्या हो सकता है। मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लिए स्टॉक क्या है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं तो मेरे लिए स्टॉक क्या है। राइट, ट्रेडर है तो सिंपल सा स्टॉक है, मैंने जो गुड्स खरीदा था वो मेरे लिए स्टॉक है। जो मैंने शाहीन से गुड्स खरीदा है और जो मैं नंदिनी, अनीता, उजाला इन सबको बेचती हूँ, ये मेरे लिए स्टॉक है। पर जब मैं खुद बनाती हूँ तो मेरे लिए स्टॉक के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, सिर्फ कंसेप्ट वाइज हम क्लियर कर रहे हैं, इसको डिटेल में कुछ करना नहीं है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद गुड्स बनाती हूँ। मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे पार्ट्स लगेंगे वो गुड्स बनाने के लिए। जो पार्ट्स लगते हैं, जो मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे मोबाइल हमारा एग्जांपल चल रहा था, मोबाइल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो बैटरी, उसका स्क्रीन, वो सब जो जो चीजें हैं वो मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। अब उसको असेंबल करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा एक साथ। तो जो प्रोसेस होता है उसको एक साथ लाने का, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस। मतलब रॉ मटेरियल को असेंबल हो रहा है, रॉ मटेरियल का नेक्स्ट स्टेप, और फिनिश गुड्स बना नहीं है, उसके बीच का स्टेप, दैट इज WIP। वो प्रोसेसिंग में जा रहा है, बन रहा है, ये भी मेरे लिए स्टॉक हो सकता है। और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, राइट, वो भी मेरे लिए स्टॉक हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर स्टॉक की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। कौन से स्टॉक की पॉसिबिलिटीज है? एक रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश गुड्स, अकाउंटिंग के टर्म के हिसाब से बोले तो। यस और नो? यस मैम। Yes. मैम। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. निधि आपकी आवाज अभी तक आई नहीं, आपको फिर भी नहीं समझ रहा है तो वापस हम, अच्छा ठीक है।
ठीक, तो हमने सिर्फ स्टॉक का कंसेप्ट को पढ़ा। स्टॉक मतलब जो गुड्स से आप डील करते हो, जो आपके पास है, जो आप लेना देना करते हो। तो ट्रेडर रहेगा तो गुड्स एक ही है जो मैं खरीदती हूँ, जो बिका नहीं है। और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो रॉ मटेरियल भी मेरा स्टॉक हो सकता है, WIP का भी स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। तो यही हमने स्टॉक केस में देखा। फिर उसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको डाउट होता है, इसके लिए मैंने और एक वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश की है। गुड्स यू आर मेकिंग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। So manufacturing is more complex because there are several phases in manufacturing process. As a result, there are three types of manufacturing stock: raw material stock, work in progress stock, and finished goods stock. हमने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे वापस लिखी हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो एक प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि मुझे थोड़े ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ट्रेडिंग की पे क्या हो रहा था, मैंने खरीदा और बेच दिया, तो वहां पे एक ही प्रोसेस था। पर यहाँ पर मुझे खुद को बनाना है तो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो there are several phases in manufacturing process. As a result, there are three types of manufacturing stock. तो एक जब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे लिए कौन से स्टॉक होंगे? जितने प्रोसेस होंगे उतना स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल मतलब क्या? द स्टॉक that will be used to make something. It could be ingredient for a cake or metal used in a fabrication. जो आप केक बनाने का तो बेस्ट एग्जांपल होगा। केक बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मेरे लिए रॉ मटेरियल होगा, राइट? वो मेरे लिए स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का। कुछ और बनाना है मुझे कुछ मेटल्स के रिलेटेड फैब्रिकेशन के लिए, तो मेरे को मेटल यूज करना पड़ेगा। तो मेटल मेरे लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल स्टॉक होगा। WIP का मतलब क्या है? दीज आर द आइटम्स दैट आरंट येट रेडी फॉर सेल बट, क्या स्क्रीन पे आ रहा है? but have been moved beyond the raw material stage. Yes, ये raw material का next stage है, beyond, उससे आगे बढ़ चुके हैं हम लोग और बन रहा है, पर सेल के लिए वो रेडी नहीं है, राइट? उसको बोलते हैं WIP stock, that is work in progress या work in process stock. Finished good stock, once the manufacturing is complete, the items are ready to sell and they are classified as finished goods. जो चीज हमने ऊपर पढ़ी थी वही चीज को यहाँ पे दूसरे वर्ड्स में लिखा हुआ है, राइट? अब हाउ स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना? आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते थे ना? Yes, ma'am. Yes, वही लिखा हुआ है कि the closing stock is brought in the books at the end of the year through an adjustment entry. हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था। आप जब देखते थे ट्रायल बैलेंस के नीचे सबसे पहले एडजस्टमेंट होता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट, एज ऑन 31st March so and so rupees. Entry by debiting the closing stock account and crediting the trading or manufacturing account. अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वहाँ पे आप डिटेल में देखोगे। In the order to bring year-end closing stock in the book, it is necessary first physically verify the quantity of the items in the stock as at year-end and compute the rate at which stock are to be valued, because the value of stock equals to, yes, quantity into rate. जो quantity आपके पास बचा हुआ है वो हर्षवर्धन, yes, yes, तो हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या करते थे हम लोग? एडजस्टमेंट्स के थ्रू हम उसको सेट करने की कोशिश करते थे हमारे क्लोजिंग स्टॉक को। क्या करते हैं? एंट्री क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट करते थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यस, और फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दूसरा इफेक्ट देके हम उसको
एडजस्ट करते थे टू ब्रिंग द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स। इसको कैसे करते हैं? यस, फिजिकली वेरीफाई करते हैं। ईयर एंड के अंदर जो कंपनी होती है वो वेरीफाई करती है कि कितना स्टॉक बचा हुआ है। फिर सेकेंडली स्टॉक जितना बचा है और उसका एक का कितना प्राइस है, दैट इज क्वांटिटी इनटू रेट। तो मुझे वैल्यू पता था। नो इशू, मुझे लगा आपको कुछ बोलना है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है स्टॉक वैल्यूएशन? स्टॉक वैल्यू करने से क्या होता है? टू शो द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द असेट। यस, मुझे पता चलता है ना कि मेरा असेट का वैल्यू कितना है, क्योंकि स्टॉक मेरे लिए क्या है? असेट है ना। स्टॉक क्या होता है अपने लिए? Assets. असेट होता है। तो मुझे उसका वैल्यू चाहिए ना, कितना है कंपनी का वैल्यू असेट, तो ये इसके लिए चाहिए होता है हमको स्टॉक वैल्यूएशन। और टू शो द प्रॉपर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मुझे प्रॉपर शो होता है, मुझे बोलो। हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं स्टॉक को? मैम बोलो ना। मैम क्योंकि वो इनकम शो करता है। आवाज मुझे क्यों कम आ रही है पता नहीं, कि आप लोग स्लो बोल रहे हो। मैम बोलो ना। मैम की मैम बोल रहे हो, इतनी आवाज आ रही है। इनकम इनकम ना वहाँ पे इनकम शो करता है क्रेडिट में। इनकम क्या करती बोल रहे हो? इनकम शो करता है, इनकम वहाँ पे ज्यादा होती तो प्रॉफिट होता है। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, हम उसको क्रेडिट साइड में क्यों शो करते हैं ट्रेडिंग के? मैम क्योंकि वो ये साल से निकल के अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना। यस, ठीक है, ये साल से निकल के अगले साल के इसमें जाएगा। आप उसको, आपने डेबिट साइड में लिखा था कि इतने सारे यूनिट्स है और आपने एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस के सारे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड करते हो आप वो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, वो सब आप ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखते हो। फिर आपने क्रेडिट साइड में लिखा है कि इतना सेल हो चुका है, पर एक्चुअल में जितना यूनिट ऊपर दिख रहा है, मतलब डेबिट साइड में, वो पूरा का पूरा बिका नहीं है। इसके वजह से तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। परचेस और ओपनिंग में तो मैंने लिख दिया है कि मेरे पास 10,000 यूनिट्स थे, पहले के 10 थे, दैट इज ओपनिंग, और 10,000 खरीदे, 20,000 के हो गए, और सेल हुआ एक्चुअल में 15,000 का। तो सेल 15,000 करने के बाद कुछ भी पैसा जो भी मुझे मिला होगा वो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ। पर अब वहां पे सेल और परचेस को मैं कंपेयर करूंगी तो ये बता रहा है वो कि 20,000 यूनिट्स थे आपके पास, 10,000 आपके पास थे और 10,000 आपने और खरीदे, और जो पैसा दिखा रहा है मुझे साइड में 40,000 50,000 जो भी है सेल करके, ऐसा क्या लग रहा है वो कि मेरा 40,000 रुपीज का जो गुड्स था वो बेच के मेरे को 40,000 रुपया मिला। 40,000 रुपया आपको वो बेच के मिला है क्या? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने ट्रेडिंग को इमेजिन करना है, ठीक है। ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपया, परचेजेस 10,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया हो गया मेरा। और एक्सपेंसेस लिखे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है मैंने वो चीजों को खरीदने के लिए। अब क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 40-50,000 मैंने लिखा हुआ है। अब मेरे को आप इवेल्युएट करके बताओ, मतलब इंटरप्रेट करके बताओ कि ये ट्रेडिंग क्या बता रहा है आपको? Profit. हाँ, प्रॉफिट बता रहा है परफेक्टली, पर Profit. प्रॉफिट कितने यूनिट्स का बता रहा है, मतलब कितने अमाउंट के लिए प्रॉफिट बता रहा है आपको? ये कैसे आप उसको रीड करोगे? ऐसे रीड नहीं करोगे। देखो मैं रीड कर रही हूँ आपको, आप समझने, आपको समझा के नहीं मुझे बताओ कि 40,000 रुपए का गुड्स जो था मेरे पास, उसको बेचकर मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बताएगा। 3 सेंटेंस को, 3 आइटम है, उसको आप याद नहीं रख सकते हो प्रेम? मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रही हूँ। ये भगवान, ये बच्चे ना, रुको, लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं क्या ऐसे? इसमें लिखते लिखते तो मेरा टाइम ही हो गया। कहाँ गया फाइल? वर्ड भी नहीं है क्या यहाँ पे? एक सेकेंड से। देखो यहाँ पे मैं, ये ट्रेडिंग है, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, ये डेबिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक बता रहा है ये एट द रेट 1000 यूनिट्स का जो वैल्यूएशन हुआ होगा वो 10,000 रुपया आ रहा है, और हमने यहाँ पे परचेज किया तो इसका 10,000 बता रहा है। ये भी 1000 यूनिट्स का है। रॉ मटेरियल हो सकता है या फिनिश गुड्स हो सकता है, जो भी है। ये क्या एट द रेट बता रहे हैं? ठीक है, रहने दो। ये मेरा क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय सेल्स, ब्रैकेट में ये 1500 यूनिट्स ही बिका है मेरा, जिसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेल करने के बाद मेरे को जो अमाउंट जनरेट हो रहा है वो 30,000। यही 3 आइटम मैं आपको बोल रही थी, आपको सोचना था, बराबर। ये मेरा ट्रेडिंग है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में मैंने ओपनिंग लिखा है, परचेज लिखा है, और क्रेडिट साइड में सेल्स लिखा है। अब यहाँ पे मैं ये रीड करते वक्त, इसको रीड कैसे करोगे आप, कैसे इंटरप्रेट करते हो कि ये अभी तक जितना मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है कि मेरा जितना स्टॉक था, बराबर, जो 20,000 का था, कि मैंने 1 लाख लिख दिया है, यस, 20,000 का जो मेरा था वो 30,000 में बिक गया है। ये सही है क्या मेरा पढ़ना? नो? क्यों? Because it's only sells 1,500. Yes, very good. That is what I was telling you कि ये रीड करना गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सेल है, अब जो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 30 में से 20 गया तो यहाँ पे कितना दिखाएगा, 10,000, बराबर ना? ये 10,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी गलत है मेरा, क्योंकि मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 10,000 का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये 2,000 गुड्स थे, जिसमें से सिर्फ 1,500 ही बिका है, और भी गुड्स बेचना बाकी है। इसके लिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कम हो जाएगा यहाँ पर। Yes, ma'am. यही समझा रही थी। प्रेम, आपको समझ में आया? यस प्रेम। ग्रेट। तो यही चाहिए स्टॉक, इसके लिए चाहिए मुझे, इम्पोर्टेंट है कि मेरे को प्रॉपर प्रॉफिट दिखाए। वही प्रॉफिट ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेट प्रॉफिट में भी मेरा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज के लिए मुझे चाहिए, इसके लिए हम लोग वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। इतना पार्ट सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा
जो थियोरी का पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। हमारा टाइम हो गया है आज। हम लोग कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके मेथड है, 2 मेथड होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के, एक फीफो और एक जो होता है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसमें लीफो बंद हो गया है। लीफो को अलाउड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हम यूज करते थे वो अलाउड नहीं है यूज करने के लिए। अब जो 2 मेथड है वो एक फीफो है और एक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, जिसमें से हम धीरे धीरे करके एक एक मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम फीफो मेथड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके सम सॉल्व करेंगे एक आध, फिर हम वेटेड एवरेज के अंदर जाएंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने आज सिर्फ थ्योरी समझने की कोशिश की कि स्टॉक क्या होता है और स्टॉक के वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आज मैं शेयर करूंगी, इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले डिस्कस कर सकते हैं। आप रीच कीजिएगा, इसको नहीं समझ में आता है तो हम इसको वापस डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू क्लास। स्टे सेफ, टेक केयर। जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। Yes, ma'am.